University of Oxford and visited several countries, enhancing his global recognition and scholarly contributions. Professor Fazli specializes in heritage conservation, urban planning, and environmental sustainability. He has delivered more than 50 expert talks and lectures, visited several countries, including United Kingdom. He has published 3 books, 12 book chapters, and 21 research papers. So I would like to welcome Dr. Farhan Fazli in this refresher course and want to thank you for sparing your precious time to be with us. I request Dr. Farhan Fazli to please begin your presentation. Thank you, Arsha sir. It was really uh, something which I was trying to share with the participants that heritage is one of the important aspect, uh, and as Arsha sir told that I'm trying to restore the built environment of this institution as well as uh, of the nation. And in this regard, this presentation will help you in understanding how built environment is important and how we can try and restore our built environment. So to start with, I'm going to share my screen to you all. Is my screen visible to you? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So, Yes. uh, Yes, sir. as Yes, you sir. all know that uh, when we talk about the built environment, the first question which arises is that what is this built environment? And when I search on the dictionary, I got this very interesting information about the environment. And this is from the Cambridge Dictionary, which says that air, water, and in or on which people live, animals and plants, all together they live, and they give an environment. Certain chemicals have been banned because of their damaging effect on the environment. This is the definition which is there on the Cambridge Dictionary, that certain chemicals have been banned because of the damaging effect on the environment. We are not doing enough to protect the environment from pollution. This is a very focusing, I must say, definition about the environment. Just have a look on this small picture where we uh, try to show that environment is not just something which we can see. It is basically something which is having some organism, and the in the absence of that organism, this environment is meaningless. So when we broadly classify environment, we can find that there are 3 basic components. The first one is natural environment, सब जानते हैं, man-made environment, and the third one is the cultural landscapes. So जब आप natural environment की बात करते हैं तो this is created by God, as we all know, like the forest, the rivers, the mountains, etc., which is given by nature to us, जो हमको God gifted है. That is what we know as the natural environment. And what man has created, जिसे इंसान ने बनाया है, like the monuments, the lakes, the gardens, the buildings. This is what is the man-made environment or the built environment, which we have established as human beings. And the third one is the most interesting one,
where is UNESCO says that this is something called cultural landscape, having the amalgamation of nature and of man, जहां इंसान की बनाई हुई चीज और नेचर दोनों मर्ज हो रहे हैं, उसे हम कल्चरल लैंडस्केप कहते हैं। ये एक एग्जाम्पल आप अपने सामने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये चिंक्वे टेरे एक जगह है इटली में, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में रखा गया, और इसमें नेचर के साथ जो ह्यूमन बीइंग्स ने बिल्डिंग्स बनाई, उनका इतना खूबसूरत अमलगमेशन है। इस साइट को डेजिग्नेट किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और इसे हम कल्चरल लैंडस्केप बोलते हैं। Environment is very wrongly understood in our country, hardly realizing that it is a real life situation. हम लोग इस पे बहुत डिस्कशन करते हैं कि इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए, इन्वायरमेंट ये होना चाहिए, बट एक्चुअल में अगर हम देखें, सो इफ वी आर डिस्टर्बिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट, द नेचर विल डिस्टर्ब अस। आपने लास्ट ईयर शायद न्यूज में सुना होगा कि हिमाचल में देयर वाज अ वेरी मेजर डिवास्टेशन, डैमेज टू द buildings and to the roads. There were different problems. आप ये देख पा रहे होंगे कि ये रोड पूरी टूट गई है, नीचे बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं। मैं आपको एक लाइव वीडियो दिखाता हूँ, आपको देख के just have a look on this particular video. ये सारी वीडियोस जो आप देख रहे हैं, ये लास्ट ईयर हिमाचल में जो फ्लड और इस तरह की चीजें आई, उनसे ये कंडीशन डेवलप हुई। एंड व्हाई दिस हैज हैपेंड, जस्ट थिंक अबाउट कि जब एक स्टीप स्लोप को हम काट के सड़क बनाते हैं, और फिर उस सड़क पे हम प्रोजेक्शन देके डीप फाउंडेशन बना के हम बिल्डिंग्स डेवलप करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे हिल जो है वो अंदर तक डिस्टर्ब होता है, और जब डिस्टर्ब होता है तो कहीं ना कहीं वो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आपने देखा आपके सामने। सो वी हैव टू अंडरस्टूड द दैट इफ वी डिस्टर्ब द एनवायरनमेंट, द नेचर विल डिस्टर्ब अस. Although the government is spending a lot of money on the protection of environment, but still it's very unfortunate that environmental awareness campaigns have very often been exploited for political agendas rather than being an integral part of our education practices. ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि discussions बहुत सारे होते हैं, environment को as a subject भी teaching में डाल दिया गया, but जब तक उसकी अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक कि लोगों को उसके बारे में समझाया नहीं जाएगा, उसके बारे में बताया नहीं जाएगा, और लोग उसके बारे में जागरूक नहीं होंगे, तब तक आपको जो अभी आपने पीछे देखा इस तरह की प्रॉब्लम्स
कंटिन्यूअसली देखने को मिलती रहेगी। आज के डिस्कशन में मैं ताजमहल पे एक डिस्कशन करूंगा आपके साथ कि बिकॉज ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल aspect of the built environment of our country. Just close your eyes for 2 or 3 seconds and think about any country of the world. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो अगर आप आंख बंद करके सोचते हैं तो जो सबसे पहली पिक्चर दिमाग में आपके आती है ऑस्ट्रेलिया के को सोचते ही वो क्या आती है? Opera House. It's a lotus-shaped opera house. सिडनी ओपेरा हाउस आती है। इसी तरह से जब आप चाइना की बात करते हैं तो ग्रेट वॉल दिमाग में आती है। आप लंदन की बात करते हैं तो बकिंगम पैलेस आपके दिमाग में आती है। आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए, प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। और जब आप पेरिस की बात करते हैं तो इफिल टावर आपके जहन, इट मींस कि किसी भी कंट्री के बारे में आप सोचते हैं, इसी तरह से अगर दुनिया में कहीं भी कोई इंसान बैठा हुआ है और उस वहां डिस्कशन हो रहा है इंडिया का, तो जो सबसे पहली पिक्चर डेवलप होगी दिमाग में, दैट इज नन अदर देन द ताजमहल। तो ताजमहल इज सच अ important built environment of the country that we can discuss the values and significance associated to them. So buildings having values and significance are the major concern while maintaining the quality of environment of any city. And why I am saying this, because the impact of environmental pollution on Taj Mahal, everybody knows that it was being discussed from last so many years that Taj Mahal is getting polluted और उस पे जो है कार्बन इमिशन हो रहा है और जिसकी वजह से ताजमहल ब्राउन हो रहा है। और ये एक आर्टिकल है जो जनवरी 2023 में 2018 में 23 तारीख को हिंदू में पब्लिश हुआ और इसमें मेंशन किया गया कि ताजमहल 400 साल पुराना है और 1970s से ताजमहल को ऑब्जर्व किया गया कि वो ब्राउन हो रहा है और उस पे जो है यूएस के लोग आए और इंडियन रिसर्चर्स आए और एंड दे आर वर्किंग ऑन इट, बट आज तक अभी भी उस पे दे आर सर्चिंग समथिंग दैट ये हो क्यों रहा है। इन 2015 द रेस्टोरेशन ऑफ स्ट्रक्चर बिगिन, but authorities are still unsure about how to handle the fragile central dome. इतना सारा डिस्कशन हो गया और ये एक पिक्चर आप देखिए, ये लास्ट ईयर जब बहुत तेज हवा चली और उस हवा से ताजमहल का जो गेट है, उस गेट के ऊपर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैसे ये इस तरफ मिनारेट थी, ऐसे ही एक मिनारेट इधर हुआ करती थी और वो मिनारेट कोलैप्स हो गई। आपको इस पिक्चर में देखने में ये बहुत छोटी सी पतली सी मीनार नजर आ रही होगी, बट आप नीचे जमीन पे इसको गिरा देखिए तो ये एक इंसान की हाइट से भी ज्यादा बड़ी लंबी मीनार थी जो टूट के नीचे गिर गई। सो द restoration of the built environment is very complex. Firstly, because the building must continue to stand up, यानी कि पहले तो हम उसको सही सलामत खड़ा रख पाए, और दूसरी जो इकोनॉमिक फैक्टर है जो कहता है कि इट शुड रिमेन इन यूज, क्योंकि आप इस चीज को भी समझते होंगे कि जब आपने देखा होगा कि आप अपने घर को अगर एक हफ्ते के लिए बंद करके ताला डाल के कहीं चले जाते हैं और जब आप लौट के आते हैं तो आपको कहीं से दीमक नजर आती है, कहीं पे कुछ बायोलॉजिकल ग्रोथ नजर आती है, कुछ पेड़ से निकलने लगे कुछ, तो एक हफ्ते के लिए घर को अगर आप बंद कर देते हैं तो ये सिचुएशन आ जाती है। तो अगर आप किसी बिल्डिंग को हमेशा के लिए ताला डाल देंगे तो वो बिल्डिंग अपने आप खत्म हो जाएगी। सो इट शुड रिमेन इन यूज। एंड द थर्ड फैक्टर इज द इट शुड रेजिस्ट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि जिस रीजन में हम लोग हैं, ये दिल्ली है या आगरा है या अलीगढ़ है, इस रीजन में टेम्परेचर वेरी करता है
from 47-48 डिग्रीज, और जब रिड्यूस होता है तो ये जाता है अप टू 1 डिग्री, 0 डिग्री. So this temperature variation of 47-48 degrees, it will affect the buildings. तो क्या होता है कि कहीं एक्सपेंशन होता है, कहीं कॉन्ट्रैक्शन होता है, और उसकी वजह से बिल्डिंग्स में क्रैक्स डेवलप होते हैं. कभी बायोलॉजिकल ग्रोथ होती है, कभी एल्गल ग्रोथ होती है, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है. सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं बिल्डिंग्स को हार्म करते हैं. एंड लास्टली द माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग को कभी भी हम आइसोलेशन में नहीं देखते. जैसे ये ताजमहल है, तो ताजमहल को हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर के तौर पे नहीं देखते. उसकी जो साइट प्लानिंग है कि पीछे की यमुना बह रही है बहुत खूबसूरत सी, उसके सामने एक खूबसूरत सा गार्डन हुआ करता था, वो सारी चीजें मिल के ताजमहल अपनी जिस सेटिंग में है, उस सेटिंग के साथ वो ताजमहल की खूबसूरती. So the micro environment of the individual building, that its site planning should not be disturbed and should be restored, since it is also the part of that building. It's not only the building, but the site of that building is also very important. Just have a look on another article in Hindu in February 13, 2019, where they mentioned that the court has intervened, and the court has said that the Taj Mahal was only the centerpiece, but the forest cover, the river Yamuna, and the ground of Taj Mahal should also be saved from pollution. So it means that not only the building, but the whole environment of that building should also be restored and preserved. But हम लोग चीजों को isolation में देखते. So to define Taj Mahal, it's the best example of the built environment in our country, with its monumental scale, with its symmetrical balance, with its perfect proportions, and beautiful site planning. As we all know that Taj Mahal was built by Shah Jahan in 1631. It means almost 400 years have gone. 400 साल हो गए, और सब जानते हैं कि ताजमहल मुमताज महल के लिए शाहजहां ने बनवाया, अपनी वाइफ के लिए. इसमें बहुत सारे फॉर्मल और इनफॉर्मल थीम्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि इस्लामिक आर्किटेक्चर में, यानी कि ज्योमेट्रिक पैटर्न्स हैं, फ्लोरल पैटर्न्स है, कैलीग्राफिक इंस्क्रिप्शन है, इनले वर्क है, पेट्राड्यूरा जिसे बोलते हैं, बहुत खूबसूरत इनले वर्क है. ताजमहल बनने से पहले जितने भी मुगल मॉन्यूमेंट्स या टूम्स हिंदुस्तान में डेवलप हुए, कंट्री में डेवलप हुए, उनकी खासियत ये थी कि उसमें जो टूम था वो सेंटर ऑफ द गार्डन में था, और उसके चारों तरफ चार बाग गार्डन हुआ था. जैसे कि आप देखेंगे सफदरजंग टूम में या हुमायूंस टूम में, इसमें गार्डन बीच में होता था, और मकबरा बीच में हुआ करता था, और गार्डन उसके चारों तरफ चार बाग गार्डन हुआ था. बट दिस वाज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, tomb structure, which was developed at the farthest end of the complex. So 275 मीटर दूर जो मेन गेट है उससे ताजमहल को बनाया गया, और बीच में चार बाग गार्डन डेवलप किया गया, so that the people who can see Taj Mahal, it can be seen from a far distance, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएं उसकी खूबसूरती आपको वाज़ेह होती चली जाए, दिखती चली जाए. मैं भी इसको और डिटेल में आपको दिखाऊंगा तो आपको ताज्जुब होगा कि ताजमहल को किस तरह से मॉडिफाई कर दिया गया विद टाइम. So the viewing axis to allow the viewer to feel design integrity of garden and the building, and of course the river Yamuna which was flowing at its back. These are
the 4 minarets of Taj Mahal, which are 49.5 meter high, freestanding. और ये मीनार जो है ये हल्की सी बाहर को आउटवर्ड बनाई गई कि कभी भी अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आए तो ये जो मीनारें हैं ये मौसोलियम पे, ये मकबरे पे ना गिर जाएं, इसलिए इनको हल्का सा आउटवर्ड बनाया गया कि ये अगर कोलैप्स भी हो तो ये बाहर को गिरे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो मिनारेट्स हैं ये एक फ्रेम की सी फीलिंग देती है कि जो बीच का मकबरा है इसको अगर आप एक फ्रेम बनाए तो मीनार जो है उसकी उसको एक इंक्लोजर देती है, एक एम्फेसाइज करती है बीच के मकबरे। आप देख पा रहे होंगे कि ये 4 सेंटर्ड आर्च है जो बहुत खूबसूरत सा, इसको हम 4 सेंटर्ड आर्च बोलते हैं। और इसके आउटर पेरिफेरी पे आप देख पा रहे होंगे ये कैलीग्राफिक इंस्क्रिप्शन है जो कि होली कुरान से है। और ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस्लामिक आर्किटेक्चर। इसी तरह से सिंगल पीस स्क्रीन है जो आप जिसे जाली कहते हैं। ये मार्बल की पूरी एक सिंगल प्लेट ली गई, एक बड़ा सा मार्बल का पत्थर लिया गया और उसको तराश के उसमें कटिंग करके और उससे जो है ये पूरी जालीज बनाई गई। और these जालीज हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय मैनुअली। उस वक्त कोई मशीन्स नहीं थी, कुछ नहीं था, बट ये हाथ से बनाई गई। और इनमें प्रेसिशन 5 mm के प्रेसिशन पे ये बनी हुई है, यानी कि आप जब इनको देखेंगे तो एक फूल और दूसरे फूल के बीच में आपको 5 mm से ज्यादा का कहीं भी डिफरेंस नहीं नजर आएगा। तो इतना क्लोज प्रेसिशन के साथ इन खूबसूरत जालियों को तराश के बनाया। ये जो आप फ्लोरल पैटर्न देख रहे हैं इसमें एक फूल के अंदर तकरीबन 28 प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स को इनले किया गया, यानी इंसर्ट किया गया सफेद पत्थर में अलग अलग जेम्स को इनले करके, और इन फूलों को बनाया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि ताजमहल इज वन अमंग द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। इट वाज डिजाइन्ड बाय ईरानियन आर्किटेक्ट्स। और क्योंकि ईरानियन आर्किटेक्ट्स ने बनाया तो कहीं ना कहीं पर्शियन इन्फ्लुएंस हमको इस बिल्डिंग में देखने को मिलता है। और बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं जो ईरानियन आर्किटेक्चर के हैं उसको उन लोगों ने यहाँ पे इंकॉर्पोरेट किया। नो डाउट मटेरियल में सिमिलैरिटी नहीं है, बिकॉज वहां पे जो मटेरियल अवेलेबल था उन्होंने वहां की बिल्डिंग्स को उन मटेरियल्स में बनाया, और यहाँ पे इनके पास मार्बल अवेलेबल था तो मार्बल से इन्होंने बनाया। तो इसलिए मटेरियल डिफरेंस है। आप just have a look on this beautiful building which is known as इमाम स्क्वायर in इस्फहान। ये ईरान में इस्फहान एक जगह है जहाँ पे ये जिसे इमाम स्क्वायर बोलते हैं, और ये इसको नक्शे जहां स्क्वायर भी कहते हैं। और ये इनका सेक्रेट प्लेस है और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। और ये उस वक्त बनी जिस वक्त हिंदुस्तान में ताजमहल बन रहा था। तो कहीं ना कहीं हमको इन दोनों बिल्डिंग्स में काफी कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। जस्ट हैव अ लुक ऑन द अनियन शेप्ड डोम ऑफ ताजमहल एंड द अनियन शेप्ड डोम ऑफ इमाम स्क्वायर। तो जो शेप है गुंबद का दोनों बिल्डिंग्स का आप देखेंगे, इसमें ऊपर बस ये पिनैकल इन्होंने अलग से बनाया है, जबकि इसमें आपको पिनैकल में सिर्फ इतना सा ये देखने को मिलेगा। अदरवाइज आप बिल्डिंग को जब आप इस डोम को नीचे से देखेंगे तो जो शेप है डोम का वो बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम शेप ऑफ द डोम इज देयर। another similarity among the two are the 4 centered arch। जैसे मैंने कहा, देखिए इसमें भी आपको 4 centered arch देखने को मिलेगा और यहाँ पे भी आपको 4 centered arch देखने को मिलेगा। इवन द डिटेलिंग ऑफ द आर्च आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो ग्रूव बने हुए हैं, द ग्रूव्स आर आल्सो वेरी सिमिलर टू
इसमें भी देखिए हल्के नीले कलर में आपको छोटे छोटे ग्रूव्स नजर आ रहे हैं, और इसमें आपको व्हाइट कलर में बहुत छोटे छोटे ग्रूव्स नजर आ रहे होंगे, बट दे आर वेरी मच सिमिलर इन स्टाइल एंड कंस्ट्रक्शन। इसी तरह से आप कैलीग्राफिक इंस्क्रिप्शन देखिए, इसमें भी कैलीग्राफी है फैकेड पे, और इसमें भी कैलीग्राफी है फैकेड पे। आप साइड में जो शॉर्ट मिनारेट्स हैं देखिए, दोनों बिल्डिंग्स में आपको नजर आएंगी। जिसकी अभी मैंने आपको दिखाया कि जो मेन गेट पे थी, कॉर्नर पे एक मीनार इसी तरह से वो टूट के गिर गई। तो सिमिलर कॉर्नर्स पे छोटी छोटी मीनार्स भी बनी हुई। साइड में आर्केड्स भी बने हुए हैं देखिए, जैसे ताजमहल के साइड में ये देखिए ये आर्केड्स बने हुए हैं, इसी तरह से इस बिल्डिंग के साइड में ये आर्केड्स बने हुए हैं। और इवन इन आर्केड्स के अंदर जो मुकरनास हैं वो भी विजिबल है। देखिए इसमें भी मुकरना बने हुए हैं ये, और इसके अंदर भी है, बट दे आर नॉट वेरी विजिबल बिकॉज वो सफेद मार्बल में है, तो वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं। इसमें क्योंकि ये पेंटेड है और अलग कलर से पेंट किया गया है, इसलिए ये उभर के आ रहा है। दोनों बिल्डिंग्स में आपको चारबाग गार्डन देखने को मिलेगा। इमाम स्क्वायर में देखिए ये भी एक चारबाग गार्डन है, और इसी तरह से ताजमहल में भी आपको एक चारबाग गार्डन था, जो कि शाहजहां ने जब बनाया तो बहुत खूबसूरत गार्डन माना जाता था। बट what are the major threats which we are handling at this moment in Taj? बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज से ताजमहल पिछले 400 साल में थ्रेटन हुआ, बट उससे कहीं ज्यादा थ्रेटन हुआ हम लोगों की वी एज ह्यूमन बीइंग, इन्होंने इस बिल्डिंग को थ्रेटन किया। किस तरह से किया वो एक एग्जाम्पल है, मैं आपको शो करता हूँ। बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए गए, आर्किटेक्चर में चेंजेस किए गए, प्लानिंग में चेंजेस किए गए, बहुत सारे एडिशंस एंड अल्टरेशंस किए गए, और ड्यू टू नेग्लिजेंस बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। और जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है आज की डेट में ताजमहल में, वो अनमैनेज्ड टूरिज्म, जिसकी वजह से ताजमहल रोज थ्रेटन हो रहा है। ये एक पिक्चर है ताजमहल की, कि आप परसीव कर सकते हैं कि ताजमहल कभी ऐसा दिखता होगा। ये 19वीं सेंचुरी का ताजमहल, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कितना डेंस गार्डन आपके दोनों साइड में है ताजमहल, और सेंटर में ये फाउंटेन जो है उसके अलोंग आपका पाथवे है। तो ताजमहल किसी वक्त ऐसा नजर आता था, और जब शाहजहां ने इस ताजमहल को बनाया तो उसकी खूबसूरती इसी गार्डन से थी, बिकॉज इस ताजमहल का ये सेंट्रल पोर्शन जो है, जब आप यहाँ खड़े होते थे, ताजमहल के मेन गेट पे खड़े होते थे, जो ताजमहल से 275 मीटर दूर था, तो वहां से ताजमहल का सिर्फ ये सेंट्रल आर्च नजर आता था और ये सेंट्रल डोम नजर आता था। बाकी ताजमहल की जो मिनारेट्स हैं, जो ताजमहल के साइड आर्केड्स हैं, वो कुछ भी नहीं दिखते थे। और जैसे जैसे इंसान इस पाथवे पे आगे बढ़ता जाता था, ताजमहल एक स्क्रीन की तरह उसके सामने खुलता हुआ चला जाता था। और जब ताजमहल से 50 मीटर दूर इस चबूतरे पे पहुंच जाते थे लोग, तो उनको ताजमहल पूरा का पूरा विजिबल होता था। और 50 मीटर दूर से ताजमहल की जो खूबसूरती थी, जिसमें मार्बल की जो शाइन थी और जो उसके अंदर जो कार्विंग थी और जो डिटेलिंग थी, वो सारी की सारी उस 50 मीटर दूर से बहुत प्रॉपरली इंसान को नजर आती थी। जो कि आज की डेट में जब हम ताजमहल से 275 मीटर दूर होते हैं और वहां से ताजमहल के गेट पे एक गाइड आपको ले जाके खड़ा करता है और आपसे कहता है कि अपनी आंख आप खोलिए, और आप आंख खोलते हैं और आपको 275 मीटर दूर से ये ताजमहल नजर आता है, तो ताजमहल की वो इंट्रिकेट कार्विंग, वो कैलीग्राफी है, वो उसकी खूबसूरती है, वो उतनी दूर से आपको नहीं नजर आती। फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बट वो जो ग्लोरी थी ताजमहल की, वो जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए, तो क्योंकि उनके यहाँ गार्डन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, सो दे हैव कट द gardens of Taj Mahal and converted the Taj Mahal into lawns. तो आज हम जो ताजमहल देखते हैं उसमें हमको चारों तरफ ये लॉन्स नजर आते हैं, और
सामने ये ताजमहल बना नजर आ। So they have completely changed the site planning of Taj Mahal, and they have converted the gardens of Taj Mahal into the lawns of Taj Mahal. Similarly, जैसा कि पीछे डिस्कशन हुआ कि ताजमहल के ऊपर बहुत सारे इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन एंड एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, तो हम लोग सुनते आ रहे हैं कि ताजमहल पे बहुत सारा पॉल्यूशन की वजह से ब्राउनिश हो रहा है। तो जो इंडस्ट्रीज थी ताजमहल के आसपास, उनको सबको शिफ्ट कर दिया गया ताजमहल से 15 किलोमीटर दूर। उसके बाद भी ताजमहल पे वो ब्राउनिश वाला जो प्रॉब्लम थी वो नहीं रुकी। तो ये हुआ कि ताजमहल के आसपास अब कोई भी ऐसा व्हीकल नहीं चलेगा जिससे कार्बन इमिशन होगा। तो साहब जितनी भी पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां थी वो ताजमहल को रिस्ट्रिक्ट कर दी गई। जो बैटरी वाली व्हीकल्स हैं उनको अलाउ किया गया कि वो ताजमहल के गेट तक, ताजमहल की जो पार्किंग है 1.5 किलोमीटर दूर, वहां से गेट तक ई व्हीकल्स आपको पहुंचाएंगे। बट स्टिल ताजमहल इज गेटिंग ब्लैकड। ये एक स्ट्रीट है, देखिए ताजमहल से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर। आप इस स्ट्रीट का एनवायरनमेंट देखिए। Why I am saying this? Because ये हमारा परसेप्शन है towards the most beautiful monument of the country, कि जब पूरी दुनिया से लोग इस मॉन्यूमेंट को देखने के लिए आते हैं, अमेरिका से, इंग्लैंड से, जापान से, हर जगह से, तो वो इस जगह से होके गुजरते हैं। ये स्ट्रीट का एनवायरनमेंट, और वो तब उस मॉन्यूमेंट को, एक ताजमहल को देखने के लिए जाते हैं। एंड जस्ट हैव अ लुक ऑफ दिस एनवायरनमेंट। ये इस्फहान की एक स्ट्रीट है जो 1 किलोमीटर दूर है उस जगह से जहां पे वो इमाम स्क्वायर बना हुआ। इसकी खूबसूरती को देखिए, इसके लश ग्रीन पाथवेज को देखिए, एक बार फिर से गौर करिए। ये ताजमहल से 1 किलोमीटर दूर की सड़क, और ये इमाम स्क्वायर से 1 किलोमीटर दूर की सड़क। जस्ट हैव अ लुक ऑन द चेंज इन एनवायरनमेंट ऑफ दीज टू मॉन्यूमेंट्स। तो आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे कि हम क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये जिसे हम यमुना कहते हैं, जिसके अलोंग ताजमहल को बसाया गया था, ये ताजमहल के पीछे जो यमुना बह रही है, ये उसका एक फोटोग्राफ है। जस्ट हैव अ लुक ऑन। ये जो छोटे छोटा काला काला नजर आ रहा है आपको, ये सारी भैंसे हैं जो यमुना में तैर रही हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये पूरे के पूरे यमुना के पीछे भैंसों का एक जमावड़ा। और ये आप देख रहे हैं, ये एक पाइपलाइन जा रही है। ये जस्ट ताजमहल के पीछे जो यमुना बह रही है, ये उसकी पिक्चर। आप इमेजिन करिए कि एक आदमी आता है ताजमहल के पीछे बाउंड्री पे बैठ के देखता है, तो उसको यमुना जो दिखनी थी, जो एक कॉन्सेप्ट था जिसकी वजह से ताजमहल को यमुना के अलोंग डेवलप किया गया था, शाहजहां ने बनाया था, आज की डेट में वहां से आपको ये नजर आ। एंड जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस पिक्चर। दिस इज इन द विसिनिटी ऑफ इमाम स्क्वायर इन इस्फहान, ईरान। ये एक लेक है जो बह रही है इमाम स्क्वायर से आधा किलोमीटर दूर पे। And see the development of the lake, and see the cleanliness of water, see the beautiful landscaping along it. Just have a look on the difference among the two, this water body and this water body. So the change in this environment among the two monumental scale buildings, it's very visible. This is the locality behind Taj, जिसे हम ताज नगरी कहते हैं। और इन्हीं लोकेलिटीज में जब फॉरेनर्स आते हैं ताजमहल में, तो वो ताजमहल को देखते हैं, और उसके बाद ताजमहल के बाहर निकलते हैं और आसपास के इलाकों में जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, और फिर इनके फोटोग्राफ्स लेते हैं।
और ले जाके अपने कंट्री में दिखाते हैं कि देखिए साहब ये ताजमहल का इलाका। कहीं ना कहीं हमें खुद समझना पड़ेगा कि what we are doing with our built environment and have a look on the built environment of this particular space, which is half a kilometer from Taj Mahal, from Isfahan Imam Square. Beautiful floral bed जिसे कहते हैं, पूरा फ्लावर बेड। आप इसके अलोंग ऑल अलोंग 10 किलोमीटर तक चले जाइए, आपको ये ऐसे ही पूरा का पूरा डेवलप मिलेगा, नीट एंड क्लीन, नॉट इवन अ सिंगल पीस ऑफ पेपर यू कैन फाइंड। आप जो जमीन है इसकी शाइन देख लीजिए, जो पत्थर लगे हुए, एंड जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस अगेन। दिस इज half a kilometers from Taj Mahal and this is half a kilometers from Imam Square. And the unmanaged tourism, जिसकी मैंने पहले भी आपसे बात करी कि कहीं ना कहीं जो हमारा टूरिज्म है, because when I visited Taj some 30 years back, तो उसकी खूबसूरती एक अलग थी कि मुझे चांदनी रात में लोग लेके गए कि चलो ताजमहल दिखा के लाते हैं। और आज की डेट में जब मैं आज से 10 साल पहले ताजमहल गया तो थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लग चुके थे। फिर उसके बाद 5 साल पहले ताजमहल गया तो पता चला कि अब तो ऊपर मौसोलियम पे जाने के लिए लाइन लग के जाना है। आप लाइन से जाएंगे, वही लाइन जाएगी और घूम के वापस आ जाएगी, आपको बीच में रुकने भी नहीं दिया जाए। जबकि हमने ताजमहल को उस तरह से देखा कि हम ताजमहल के पीछे जो बाउंड्री पैरापेट वॉल थी, उस पैरापेट वॉल पे टेक लगा के घंटों बैठे ताजमहल को देखते रहते थे। बट आज की डेट में उस बाउंड्री वॉल के अलॉन्ग एक रोप लगा दी गई है कि बाउंड्री वॉल तक आप नहीं जा सकते क्योंकि वो कमजोर हो गई है। अभी लास्ट ईयर बाउंड्री वॉल का थोड़ा पोर्शन टूट के नीचे गिर गया था, तो उसको दोबारा से जो है बनाया गया, तो उस पर एक रोप लगा दी गई है कि इस रोप के पीछे कोई भी नहीं जाएगा। तो यानी बाउंड्री वॉल को आप छू भी नहीं सकते, उसको आप टच भी नहीं कर सकते, उसको फील भी नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शंस बढ़ते जा रहे हैं, एंड दीज रिस्ट्रिक्शंस आर जस्ट बिकॉज वी आर एज मच एज इनसेंसिबल कि हम जब अपने मॉन्यूमेंट्स पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं। ये देखिए, दिस इज द अनमैनेज्ड टूरिज्म इन ताजमहल। आप ये देख पा रहे होंगे, ये महीन महीन महीन, ये सारा का सारा ये इंसान है जो ताजमहल के ऊपर है, और कितना रश है एट द टाइम। So we have to understood that we have to manage this tourism. जबकि ये इमाम स्क्वायर में मैं आपको बताऊं कि जब शाम होती है, सनसेट होता है, उस वक्त ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा इस्फहान उठ के इस इमाम स्क्वायर पे आ गया, और लोग आते हैं यहाँ, चादर बिछाते हैं, यहाँ पे खाना खाते हैं, यहाँ देर रात तक रुकते हैं। और जब सुबह आप इमाम स्क्वायर पे जाते हैं तो आपको कहीं पे भी एक पेपर का छोटा सा तिनका भी देखने को नहीं मिलता, बिकॉज वो लोग जो आते हैं वो खुद सारी चीजों को ले जाके डंप करके वहां से तब निकलते। जो मैंने आपसे बताया कि हमारे यहाँ जो रेस्ट्रिक्शंस हमने देखे, और यहाँ देखिए ये बग्गी है जो इमाम स्क्वायर के अंदर ये जो पूरा स्ट्रेच है, जिसमें 0.5 किलोमीटर लंबा लेंथ है और 300 मीटर्स विड्थ है इसकी। तो इस क्वाड्रेंगल के अंदर ये बग्गी चलती है कि जो लोग पैदल चल के इसको ना घूम पाए, वो बग्गी से इस पूरे कॉम्प्लेक्स को घूम लें, देख लें। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर बग्गी चलाई जा रही है उससे जो है कॉम्प्लेक्स को देखने के लिए। और हमारे यहाँ रेस्ट्रिक्शंस आप ये देखिए कि बिल्डिंग के कितना क्लोज ये बग्गी है कि आप हार्डली 10 मीटर्स भी नहीं होगा। और हमारे यहाँ जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से हमने रेस्ट्रिक्शन इतना ज्यादा हो गया है कि आज की डेट में मैंने बताया रोप लगी हुई है, आप उसके आगे नहीं जा सकते। जस्ट हैव अ लुक ऑन द वेंडलिज्म इन ताजमहल। ये ब्लैक जेस्पर जो यहाँ लगा हुआ था, इसको निकाल के ले गए। क्या कि आपने देखा होगा जब आप जाते हैं मॉन्यूमेंट्स के ऊपर तो आपकी चेकिंग होती है, जो कुछ आपके पास होता है वो सब आपसे कहा जाता है कि निकाल के लॉकर में रख दीजिए। बट उसके बाद भी अगर आपके पास एक छोटी सी पिन रह गई
तो उस पिन से आप इंसर्ट करके आपने एक ब्लैक जैस्पर निकाल लिया कि साहब ये हम ताजमहल से निकाल के लाए, देखिए ये ताजमहल का पत्थर है जो हमारे पास। सो दिस इज हाउ वी आर डूइंग वैंडलिज्म विद आवर ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स। एंड जस्ट सी द नीट एंड क्लीन facade of the building of Imam Square। ये पेंटेड है और आप देख पा रहे होंगे कि पेंट भी अपनी जगह पे कितना इंटैक्ट है, 300 साल पुराना। दिस इज अनदर पिक्चर ऑफ मिसिंग इनलेड स्टोन। ये देखिए इस तरह से ये लाल पत्थर, इस सफेद पत्थर के अंदर इनले था जो कि पूरा का पूरा जो है गायब हो चुका है। एंड जस्ट सी द ब्यूटीफुल clean facade of Imam Square। This is simply painted and they have restored the paint also। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज थी कि मैं आई वाज मूविंग ऑन द फ्लोर ऑफ ताजमहल, तो सडनली आई फाउंड दिस कि मेरे पैर में कोई चीज लगी। तो मैंने सोचा कि क्या चीज है, मैंने बैठ के देखा तो पता चला कि ये मसाला है जिससे ताजमहल को रिस्टोर किया जा रहा था। कहीं कुछ खराबी हुई होगी तो उसमें लगाने के लिए मसाला बनाया गया हो, और वो मसाला उठाना भूल गए उस जगह से और वो वहीं पत्थर में सेट हो गया। तो जो जब आप ताजमहल के फ्लोर पे चल रहे थे तो आपके पैर में ये मसाला लगा, तो अंदाजा होता है कि कितना मतलब इनसेंसिबल हो चुके हैं हम आज की डेट में कि जिस चीज से हम रेस्टोरेशन कर रहे थे। आप ये देखिए ये पूरी फिलिंग करी गई है स्टोन के बीच में, उसकी कंडीशन देख लीजिए कि किस तरह से फिलिंग करी गई है, और जो बाकी मसाला बचा उसको आपने फ्लोर पे ही छोड़ दिया, वो वहीं सेट हो गया स्टोन के ऊपर। तो दिस इज हाउ इनसेंसिबल वी आर अबाउट आवर ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स। Just have a look on this Imam Square। This is the pathway which is connecting the Imam Square to the main road। एक गली है जो कि इमाम स्क्वायर को मेन रोड से जोड़ती है, और उस गली में आप देखिए कि जो आपको पाथवे नजर आ रहा है कितना नीट एंड क्लीन है कि इसके ऊपर आदमी अगर बैठ भी जाएगा तो उसके कपड़े नहीं गले। एंड जस्ट हैव द लुक ऑन द फ्लोर ऑफ ताजमहल। ये जो ताजमहल के दोनों साइड में बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ये उनके फ्लोर की कंडीशन, जो स्टोन धीरे धीरे डिटोरिएट हो गया, और ये देखिए जगह जगह से ब्लैकन हो गया, और इन ब्लैक पैचेस को भी हम क्लीन नहीं कर पा रहे, हम नहीं साफ कर। और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हिंदुस्तान के मॉन्यूमेंट्स को रेस्टोर करने के लिए जितना पैसा जमा होता है, उस पैसे का 60% अकेली बिल्डिंग पे लगता है, ताजमहल पे। तो और तब इसकी ये कंडीशन है, तो आप समझ सकते होंगे कि बाकी का जो 40% पैसा है जिससे पूरे हिंदुस्तान के मॉन्यूमेंट्स को रेस्टोर किया जा रहा है, तो उनकी क्या कंडीशन। अनदर पिक्चर ऑफ the neat and clean floor of Imam Square। This is the water body in front of the masjid of Taj Mahal। जो ताजमहल के सामने एक वजू के लिए एक वाटर बॉडी थी। ये पानी काई से ग्रीन हो चुका था जब मैंने देखा, और आज की डेट में ये इमाम स्क्वायर की वाटर बॉडी है जिसके पानी को आप देख सकते हैं कि विच इज ब्लू इन कलर। डैमेज्ड प्लास्टर ऑफ द वॉल्स। इवन आप देखिए कि ये जो रेस्टोरेशन का काम किया गया, ये पुराना पत्थर लगा हुआ है और ये नया पत्थर लगाया गया है। इस नए पत्थर की क्वालिटी देखिए, इस नए पत्थर में जो ये जिगजैग प्लेसमेंट किया गया है पत्थर का, इसको देखिए। मींस एक भी पत्थर एक दूसरे से सिमिलर पोजीशन पे नहीं, और इनको देखिए, इनके बीच में गैपिंग देखिए, बिल्कुल सिमिलर, एक दूसरे से बराबर गैपिंग पे प्लेस किए गए।
वहीं इन पत्थरों को देखिए कि एक भी गैप बराबर नहीं है और एक भी पत्थर बराबर नहीं। तो दिस इज द लेवल ऑफ इंटरवेंशन वी आर डूइंग इन आवर बिल्डिंग्स। ये देखिए, ये पुराना पत्थर था, यहाँ पे इस पत्थर को काट के नया लगाया गया क्योंकि खराब हो रहा था, और नए पत्थर की क्वालिटी आप देख पा रहे होंगे कि ये रेड है और ये इसी में व्हाइट पैचेस भी। सो अभी ये नया लगाया जा रहा है, लगाया गया है, और इसकी ये क्वालिटी। एंड सी द लेवल ऑफ restoration being done in this particular building to restore the facade. ये फाउंटेन्स हैं जो ताजमहल के सामने गेट से लेके और ताजमहल की बिल्डिंग तक है, जो कि डैमेज्ड है, और ये फाउंटेन्स हैं जो similarly we have found several cracks in the building, in the structure, and these cracks are day by day widening, बढ़ते जा रहे हैं। And see the beautiful facade. So the question which arises in my mind, that are we doing justice with our built environment, and if not, what are the steps to be carried out? Because इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ से प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं it's very important that we, the human being, we have to understand that social conservation is also very important. कहीं ना कहीं लोगों को समझाना, लोगों को बताना, that is also very important. The most important task is to provide the awareness among the people. लोगों में जागरूकता पैदा करना है about the importance of this built environment. And अगर हम उनको बता पाए कि ये हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिनको हम खराब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको उनको एजुकेट करना है। उसके लिए कुछ प्रेजेंटेशंस, कुछ मल्टीलिंगुअल, कुछ रिकॉर्डेड, कुछ गाइड्स, कुछ हैंड हेल्ड किट्स देनी होंगी कि अंदर जाने से पहले कम से कम उनको उस जगह की अहमियत का तो अंदाजा हो, उनको पता तो हो कि हम किस चीज को देखने जा रहे हैं, so that they can not damage their built environment. And also कुछ उनको एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाए, उनको बताया जाए कि क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, so that they can understand them and they will not damage them. Lastly, the public should start the environmental awareness campaigns and take necessary steps to protect the built environment of our cities as well as our country. In this light, Aligarh Muslim University is organizing several workshops and training programs to provide awareness among the built environment, about the built environment among the participants. So last year हमने एक training program कराया that was on the cleaning of facade and of the heritage buildings, or it was a very successful training program कराया है। ये hands-on training program है जिसमें हम stone conservation पे इस वक्त कर रहे हैं काम, और ये हम तारीखी एमओ कॉलेज कॉम्प्लेक्स में खड़े हुए हैं जिसे आज सर सैयद हॉल बोलते हैं। इसकी ये सेंट्रल विंग है जिसमें स्टूडेंट्स हमारे रेस्टोरेशन का काम कर रहे हैं, स्टोन कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। इसमें बेसिकली हम लोग कैसे स्टोन को क्लीन करते हैं, उसके वेरियस एस्पेक्ट्स, यानी कि जो ऑर्गेनिक क्लीनिंग होती है और केमिकल क्लीनिंग होती है और मैकेनिकल क्लीनिंग, उन सबको बता रहे हैं, और उसके बाद किस तरह से उसका कंसोलिडेशन स्टोन का करते हैं, और मुख्तलिफ स्टोन्स को जैसे मार्बल पे हम क्ले पैक टेक्निक से क्लीन करते हैं, जो कि अभी ताजमहल के डोम पे यूज हुई है, उसको हम यहाँ एक स्टोन पे करके बताएंगे। इसी तरह से स्टोन प्लेट्स पे हम ऑर्गेनिक क्लीनिंग, जिसे हम पेपर पल्प टेक्निक कहते हैं, जिससे हम सॉल्ट एक्सट्रैक्शन करते हैं, वो बताएंगे। तो मुख्तलिफ चीजों को यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स को बताया गया है। बेसिकली हम इसे जो है 3 तरीके से क्लीन करते हैं। तो पहला तो हम इसको मैकेनिकल क्लीनिंग करेंगे, और उसके जनरली हम क्या नाम है, ब्रशेस है हमारे पास, और पानी है और लिक्विड डिटर्जेंट है, उससे हम इसको साफ करेंगे। तो इससे हमारी
सो मैं कहती हूँ जो ज्यादातर जो उसमें प्रॉब्लम है या जो भी गंदगियां हैं वो साफ हो जाएंगी, जैसे डस्ट और जो भी पॉलिथेंस वगैरह जो उसकी आउटर लेयर है वो साफ हो जाती है। ज्यादातर तो प्रॉब्लम जो है वो आप देखेंगे कि बर्ड्स बीट होती है, वो भी बहुत ज्यादा सलूक खराब कर देती है। तो ऑर्गेनिक में जी मैं यूज करूंगी दो तरह की। एक तो मैं यूज करके आज ये बच्चे करने वाले हैं, ये जो आपका क्रेप होता है बेसिकली उसका हम रीयूज करेंगे, रिसाइकिल करेंगे उस तरीके से। तो उसे हमें करना है कि हम उसे सोक करके उसका एक मास्क तैयार करेंगे, मैश तैयार करके मैशेस का, फिर वो हम उसे अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, ताकि जो भी उसमें सॉल्ट डिपोजिशन है बेसिकली होता ये है। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि वाटर क्या होता है वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। जब हम उसको अप्लाई करेंगे तो ये कैपिलरी सक्शन की तरह ये सक कर लेगा सॉल्ट। उसके बाद दूसरा हम यूज करेंगे मुल्तानी मिट्टी, और आई थिंक ये बहुत ही नॉर्मल घरों में प्रैक्टिसेस है जो नॉर्मल ब्यूटी के लिए यूज किया जाता है। तो सेम इसी तरीके से जो मार्बल होता है उसका भी कॉम्पोजिशन समहाउ बहुत ज्यादा उसी के जैसा होता है। अभी रिसेंटली ताजमहल में भी एक प्रोजेक्ट था जिसमें यही सेम टेक्निक यूज की गई, और ये काफी हेल्पफुल होता है, काफी हेल्प उसमें देखा जाए मार्बल के लिए। तो उसको भी हम बताएंगे, मुल्तानी मिट्टी को भी लगा कर बताएंगे बच्चों को। तो ज्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो बेसिकली वाटर्स के एब्जॉर्प्शन की वजह से ही ये प्रॉब्लम आती है। तो हम ऐसा केमिकल यूज करेंगे जिसकी वजह से वाटर उस पे स्टिक ना हो पाए। ये बहुत ही जबरदस्त वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी है प्रोफेसर फरहान फाजली साहब ने डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंडर में। इसमें पेपर रिस्टोरेशन और स्टोन रिस्टोरेशन, आर्टिफैक्ट्स कंजर्वेशन के बारे में हैंड्स ऑन नॉलेज दी जा रही है। तो ये थ्योरी में ज्यादा नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रैक्टिकली हमें सिखा रहे हैं कैसे हमें पेपर को, पत्थर को रिस्टोर करना है और अपनी हेरिटेज को बचाना है। जो पुरानी हमारी एक हिस्ट्री है उसको बेसिकली प्रिजर्वेशन की जरूरत है, क्योंकि मैं फील्ड ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन से हूँ। तो उसके अंदर जो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट है, आइदर दी हैव टू बी प्रिजर्व्ड, और सिमिलरली जो मॉन्यूमेंट्स हैं और हमारे देश की उनकी ऐसी सी चीजें हैं कि जिनको हमें अपने आने वाले वक्त में जनरेशन को दिखाने की जरूरत है, उसका रेस्टोरेशन और प्रिजर्वेशन की जरूरत है। आज हम लोग यहाँ ऐसे साउथ के अंदर हैं, ये यूनिवर्सिटी का बहुत ही रिच हेरिटेज है। इस रिच हेरिटेज को भी जो स्टोर्स थे उस वक्त में सर सैयद अहमद खान साहब ने जो भी काम किए और पेश किए काम जो हम लोगों के सामने हेरिटेज के तौर पर मौजूद हैं, उसको भी हम रेस्टोर और प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बच्चों को हम कैसे स्टोन की क्लीनिंग होती है इसके बारे में बता रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि जो मैकेनिकल क्लीनिंग कैसे करेंगे, केमिकल क्लीनिंग कैसे करेंगे। तो आज का जो दिन है वो मैकेनिकल क्लीनिंग के लिए है, जिसमें हम पल्प मेथड और क्ले मेथड टेक्निक्स बता रहे हैं। इसमें उनको किस तरह से जो डर्ट और अदर वक्त हम लोग क्ले मेथड यूज कर लेते हैं, जिससे एक एक्सटर्नल बेस्ट मेथड होता है। नॉर्मली थ्योरीज को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस जो है बच्चे जो अपने हाथ से काम करते हैं तो उनको बहुत अच्छा स्पेशल फील होता है, और यही किस तरीके तरीके को सीखते हैं तो इनको बहुत फायदा मिलता है। और सबसे अच्छी बात है कि जो पार्टिसिपेंट्स है वो डिफरेंट स्ट्रीम्स के हैं। जो आर्किटेक्चर बैकग्राउंड के हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जो कंजर्वेशन बैकग्राउंड के हैं या लाइब्रेरी बैकग्राउंड के हैं या अदर बैकग्राउंड के लिए, उन लोगों के लिए भी सीखने का एक बहुत बड़ा मौका है, ताकि वो सीखे, चीजों को समझे, अपनी हेरिटेज को रिजर्व करने से लेकर की जो साइंस है इसके पीछे, जो इसकी टेक्निक्स है उसको मालूम करें, ताकि हम दूसरों को ये बता सकें और खुद भी इस चीज का ख्याल रखें कि ये हमारी जो धरोहर है, जो हमारी विरासत है, उसको कैसे बचाना है। Similarly, we are doing several training programs here every year. ये एक आर्च बनाया गया जो विदाउट मोर्टार है, जिसमें कहीं मसाला यूज नहीं किया गया, और ये आर्च एक्शन से खड़ा हुआ है। और इसको बनाने के बाद फिर इस पे कहाँ कहाँ फोर्सेस लगते हैं, कैसे स्ट्रेसेस लगते हैं, वो बताया गया।
So this is all about from my side. And thank you for your patience listening. The session is now open for dialogue and discussions. So सर ये पेशेंस नहीं है सर, ये आपका काम है कि हमें कुछ बोलने ही नहीं दे रहा है। बहुत अच्छा, वेरी एक्सीलेंट सर, बहुत बढ़िया है। इंटरेस्टिंग सेशन सर। Very nice, sir. वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी इंटरेस्टिंग सर। thank you, sir. So सर आपका I must- सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा और ताजमहल को हम एक बार विजिट कर चुके हैं, लेकिन एक बार और विजिट करेंगे। आपके लेक्चर ने आज जो है ताजमहल को दोबारा देखने के लिए बहुत प्रेरित किया। थैंक यू वेरी मच सर। ताजे दीदार कराने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। ताजे दीदार पुनः हम लोगों ने कर लिया सर। थैंक यू। मैं ये कहूँगा कि जी गुड मॉर्निंग सर, शालिनी यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जलेसर, एंड सर आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम द आगरा। तो जितनी आपने चीजें इतना बारीकी से बताई तो सब ये तो मेरे आसपास ही होती रहती हैं, मैं बहुत आसपास से सब ऑब्जर्व करती हूँ। तो मुझे सर ये कभी जैसे आपने जो सेशन बताया तो मुझे जो रियलाइज हुआ कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा लगा कि जैसे जो भी टूरिस्ट आता है तो उसको पहले एक छोटी सी हम डॉक्यूमेंट्री दिखाएं, जैसे हम कुछ और प्लेसेस में भी चलता है कि एक छोटी सी अगर हम डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे तो शायद जो भी पर्सन बैठेगा वहां उसके दिमाग में इम्पैक्ट पड़ेगा कि कितना इम्पोर्टेंट है ये। तो हो सकता है जब वो अंदर जाए तो वो ये सारी एक्टिविटीज ना करे जो हम इतना सफर करते हैं आज के टाइम में। जी बिल्कुल शालिनी जी आप सही कह रहे हैं। बिकॉज मेरा मानना ये है कि हम किसी भी बिल्डिंग को या किसी भी इन्वायरमेंट को सही करके दे तो सकते हैं, बट जब तक कि हम सोशल कंजर्वेशन नहीं करेंगे, हम लोगों को नहीं समझाएंगे, उसकी वैल्यूज के बारे में नहीं बताएंगे, उसके बारे में नहीं बताएंगे, तब तक कि हम उसको नहीं बचा सकते। क्योंकि आप करके उसको दे देंगे और जब तक उनके अंदर वो समझ नहीं होगी, जैसे मैंने आपको दिखाया कि यमुना है, इतनी खूबसूरत यमुना, और वो ताजमहल के पीछे से जा रही थी, जिसकी एक ब्यूटी की वजह से उसको बनाया गया था उस सेटिंग में ताजमहल को। आज उस यमुना को आप देख लीजिए कि वो भैंसों का एक तबेला बनी हुई है और nobody even bothers about, nobody is thinking about, even उस पूरे स्ट्रेच पे छोटे छोटे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स थे और विद टाइम वो धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं। उसमें 2 या 3 जैसे वो एतमादुद्दौला है या चीनी का रौजा है, इस तरह के 2-3 मॉन्यूमेंट्स बचे हैं। बाकी उसमें 21-22 मॉन्यूमेंट्स थे उस पूरे स्ट्रेच पे, वो धीरे धीरे खत्म हो गए। तो मैं जब दुनिया के दूसरे कोनों में देखता हूँ, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि मैं आई वाज इन ऑक्सफोर्ड और वहां पे मैंने देखा कि एक लोग मुझसे बोले कि चलिए हम आपको अपनी एक बिल्डिंग दिखा के लाते हैं। ले गए और एक झोपड़ी के सामने हमको खड़ा कर दिया और बोले देखिए साहब ये हमारी 500 साल पुरानी बिल्डिंग है। तो वो एक सिंपल झोपड़ी थी, उसमें वुडन ब्रेसिंग थी, वुड की बनी हुई थी, एंड इट वाज प्रॉपर्ली रेस्टोर्ड एंड इंटैक्ट। मैं उसको देखता रहा और सोचता रहा कि ऐसी तो पता नहीं कितनी झोपड़ियां हमारे हिंदुस्तान में हर एक शहर में होंगी, बट वही है कि हमको उसकी अहमियत का अंदाजा ही नहीं है कि हम किस चीज को खो रहे हैं। दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आज से तकरीबन 7-8 साल पहले मैं अलीगढ़ के सिटी में एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे जा रहा था। तो आई वाज विद अ शेफर्ड ड्रिवन कार। आई आस्क्ड माय शेफर्ड टू स्टॉप द कार। मैं उस कार से उतरता हूं और थोड़ी दूर पे मुझे एक टूम नजर आ रहा था। मैं जाता हूं, उसको करीब से देखता हूं तो मैं देखता हूं कि वो 16th सेंचुरी का एक मुगल टूम है। और जब मैं और करीब जाता हूं तो देखता हूं कि उसकी जो फाउंडेशन है वो पूरी की पूरी खोखली हो चुकी है और वहां पे 4-5 लोग बैठ के ताश के पत्ते खेल रहे। तो मुझे इतनी हैरत हुई कि ये समझ है हमारी अपने 400 साल पुराने इतिहास को इस तरह से हम खत्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको समझना पड़ेगा। और जो चीज मैंने आपको वीडियो में पहले दिखाई कि जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, दोस प्रॉब्लम्स आर जस्ट बिकॉज ऑफ अस ओनली। कि आपने पहाड़ों के ऊपर जो
जो उनका ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर था, वो जो झोपड़ियां छोटी छोटी बना लेते थे अपने सस्टेनेबल मटेरियल से, जो उनके लोकली अवेलेबल थे, कि लकड़ी उन्होंने ली, पत्थर लिया, उससे जोड़ के उन्होंने अपना एक स्ट्रक्चर बना लिया और उसको ईयरली वो खुद रिपेयर कर लिया करते थे। बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपने सीमेंट उनके बीच में इम्बाइब कर दिया, आपने सैंड उनके बीच में इम्बाइब कर दिया, आपने ब्रिक्स उनके बीच में इम्बाइब कर दिया, स्टील। अब क्या हो रहा है कि वो वहां पे पाइल फाउंडेशन बना रहे हैं, स्टील के की गहरी गहरी फाउंडेशंस खोद के उसमें मल्टी स्टोरीड स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि वो पहाड़ सारे लूजन हो रहे हैं, और जो आप रोज लैंडस्लाइड सुनते हैं वो वही चीजें हैं कि वो पत्थर, वो पहाड़ टूट के गिर रहा है और वो उसके साथ पूरी पूरी बिल्डिंग्स नीचे आ रही हैं, और जब वो नीचे आ रही हैं तो वो अपने साथ और बहुत सारी बिल्डिंग्स को लेके जा रही हैं। तो दिस इज हाउ वी आर डैमेजिंग अवर built environment. तो कहीं ना कहीं we as human being are the most responsible for all these things. सर मैं Yes, मोहम्मद sir. नासिर, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रजा पीजी कॉलेज रामपुर से हूँ। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि ये इतने सारे जो हमारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है इसका, और खासकर जो पोल्यूशन थ्रेट है जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, तो इसका गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग पर किस तरह से निगेटिव इफेक्ट हुआ है, और इतने सारे एनवायरमेंटल एक्ट होने के बाद भी हम उनको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नासिर साहब, आप के सवाल का मैं एक बहुत सिंपल सा जवाब दे दूं कि यही हिंदुस्तान का आदमी जब दुबई में जाता है तो वहां पे वो कभी भी आपने देखा होगा कि गुटखा खा के सड़क पे नहीं थूक सकता, क्योंकि अगर उसको गुटखा खाते हुए पकड़ा गया तो भी फाइन है, और अगर सड़क पे थूकते हुए पकड़ लिया गया तो बहुत हैवी फाइन। सर फाइन तो इंडिया में भी है सर, यहाँ पे भी रूल्स हैं, फाइन्स हैं जी। तो यहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। यहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। Yes, sir. मैं आपको बताऊं, एक और एग्जांपल से इसको क्लियर करूं कि ऑक्सफोर्ड में मेरी एक कुलीग थी, उनके साथ मैं उनके घर पे एक दिन लंच पे गया, और जब मैं लंच से लौटा तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने हस्बैंड से कह देती हूँ वो आपको आपके ऑफिस तक ड्रॉप कर देंगे। तो वो मुझे ड्रॉप करने के लिए आए, तो उनकी मर्सिडीज में मैं जब मेन ऑक्सफोर्ड पहुंचा, सेंट्रल ऑक्सफोर्ड, तो मैंने उनसे कहा कि इधर किनारे रोक दीजिए, मुझे उतरना है, यहाँ पे मेरा ऑफिस है। तो वो मुझसे बोले कि फरहान साहब माजरत, मैं यहाँ पे नहीं रोक सकता। मैंने कहा क्यों, मुझे उतरना? तो बोले नहीं, मैं आपको यहाँ नहीं उतार सकता, क्योंकि यहाँ अगर मैंने गाड़ी रोक के आपको उतारा तो यहाँ 7,000 रुपए का फाइन लग जाएगा मुझे, सिर्फ गाड़ी रोक के उतारने में। बोले एक बार मैंने ऐसा ही किया था कि गाड़ी रोक के मैंने एक इंसान को उतारा था और मेरे ऊपर 7,000 की पेनल्टी आई थी। तो उस दिन के बाद से मैं कभी भी ये चीज दोबारा नहीं कर पाया और ना मैं कर पाऊंगा। तो उन्होंने मुझे ले जाके वहां से आधा किलोमीटर दूर उतारा, और वहां से फिर मैं पैदल वॉक करके अपने ऑफिस तक आया। तो सारा जो बात आपने कही नासिर साहब, कि सब कुछ इसी चीज पे है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ऐसा लॉज नहीं है, लॉज आर देयर इन आवर कंट्री, बट दे आर नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, एंड दैट इज व्हाई वी आर। सर मुझे लगता है जैसे हमारे यहाँ जो प्रोमिनेंट नेशनल हेरिटेज है सर, जैसे ताजमहल की बात चल रही थी, तो हम क्यों ना ऑनलाइन ही सिस्टम कर दें पूरा टिकट्स का, कि एक दिन में इससे ज्यादा लोग वहां नहीं जा सकते। इसी तरह से सारे नेशनल जितने भी हमारे हेरिटेज हैं वहां पे इस तरह का सिस्टम किया जा सकता है। तो एक टूरिस्ट प्लेस पे भी किया जा सकता है कि इससे ज्यादा लिमिट है, एक दिन में या एक महीने में नहीं आ सकते। कई और कंट्रीज में मैंने पढ़ा इस तरह के रूल्स हैं, तो वो यहाँ क्यों लागू नहीं किया जा सकता सर? आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं नासिर साहब, मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ। चाइना में जो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं उनके लिए ऑनलाइन टिकटिंग होती है, और इस तरह से होती है कि एक दिन में वहां पे इतने 100 टूरिस्ट ही जाएंगे और वो देख के वापस आ जाएंगे। मैं आपको बताऊं, ताजमहल का एक डेटा मेरे पास है कि ताजमहल में नॉर्मल डेज में 30,000 to 40,000 टूरिस्ट विजिट करता है, और जब हॉलीडेज होते हैं तो मोर देन 1 लाख टूरिस्ट पर डे विजिट करता है, मोर देन 1 लाख टूरिस्ट विजिट कर रहा है। और आप इमेजिन करिए कि आपने तो पता नहीं आपका कभी ताजमहल पे जाना हुआ नासिर साहब? जी सर, मैं 4-5 बार गया हूँ, पास में ही है मेरे, रामपुर से पास में है।
कितने का टिकट लेके गए थे आप ताजमहल देखने? तो सर मैंने टिकट तो नहीं लिया था, क्योंकि मेरे दोस्त जो है वहाँ डिप्टी एसपी थे, तो वो साथ में ले गए थे अपने गाड़ी पे। 2 बार गया, उन्हीं के साथ गया। उससे पहले गया था तब भी जो है, मेरे जो नानी है वो आगरा की हैं, तो उनके भाई जो है वहां पे गाइड हैं, तो उनके साथ गया था, तो टिकट लेना नहीं पड़ा है मुझे अभी तक सर। टिकट लेना नहीं पड़ा। नासिर साहब, मैं आपको बताऊं 250 कि अमरनाथ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब आज से 10 साल पहले या 8 साल पहले ताजमहल का टिकट 10 साल पहले 60 रुपया था, 60 रुपीज, 20 रुपए का टिकट हुआ करता था। 20 रुपया था, अभी हो गया 250 जी। और अब क्या है कि 50 रुपए का एंट्री टिकट है, और आप जब अंदर जाएंगे और आपको मेन मौजूलियम पे जाना है, यानी वो जो मार्बल वाला स्ट्रक्चर है उसके फ्लोर पे जाना है, तो वहां के लिए आपको 200 रुपए का टिकट अलग लेना पड़ेगा। तो 250 रुपए का आप एक आदमी का टिकट लेते हैं ताजमहल को घूमने के लिए, विजिट करने के लिए। और एक दिन में अगर 1 लाख विजिटर आ रहा है पीक डे में, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कलेक्शन हो रहा होगा। बट is that fund being utilized on Taj Mahal? No sir. So this is what is the problem? मेरा एक सवाल कि कहीं ना है कहीं हमको सर, मैं दीपिका सिंह बोल रही हूँ हिंदी डिपार्टमेंट एमयू से। सर सवाल क्या है, मतलब ये एक जिज्ञासा भी है या फिर आपकी जो बातें उसमें मैं जोड़ना चाहूंगी कि सर इस सारी बातों से तो ये पता चलता है कि जहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था जैसी रहती है वैसा ही सिविक सेंस वहां पर डेवलप होता है। और क्योंकि यहीं के लोग जब दुबई जा रहे हैं या दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं तो वहाँ के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ उस तरह का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है किसी चीज को लेकर के। और दूसरी बात सर प्रशासनिक सर उसमें बहुत सारे लूज फॉल्ट हैं, क्योंकि हम एक बैकडोर हर उसमें निकाल लेते हैं। और सर दूसरी बात है कि सर मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ, तो अभी वहाँ पे काशी कॉरिडोर बना है और काफी धूमधाम से मतलब चीजें हो रही हैं, पूरी दुनिया के पर्यटक, और ऐसा नहीं कि बनारस में पर्यटकों की संख्या कभी कम रही हो, पूरी दुनिया से लोग हमेशा आते रहे हैं। और दूसरा अभी हाल फिलहाल मेरा अल्मोड़ा के जागेश्वर जाना हुआ, तो वहां पर भी शिव का एक काफी पुराना मंदिर है शिव जी का। तो उस वहां पर वो पूरा देवदार का वन था जिसमें वो मंदिर था है, तो उन वनों को काट करके सड़कें चौड़ी की जा रही हैं। काशी का रोड कॉरिडोर के नाम पे बहुत सारी पुरानी चीजों को बनारस में तोड़ा गया, मतलब एक तरह से ढहा दी गई बहुत सारी चीजें वहां पर सुंदरीकरण के नाम पर। तो ये जो प्रशासन की तरफ से पुरानी जगहों को लेकर के, कुछ खास जगहों को लेकर के जो सुंदरीकरण जैसी चीजें चल रही हैं, जहाँ पे पुराने हजारों साल पुराने पत्थर लगे हैं उनको खड़वा करके टाइल लगवा दिया जा रहा है, या फिर जो है जंगलों की सफाई कर दी जा रही है सड़कें चौड़ी करने के नाम पे, क्योंकि कभी सड़कें नहीं थी तब भी जो जाने वाले लोग थे, जो श्रद्धालु थे, वो वहां पहुंचते ही थे, जाते ही थे। लेकिन चौड़ी सड़कें हर जगह 4 लेन बना करके पहाड़ों पर या फिर ऐसी जगहों पर, तो यह जो एक नजरिया है प्रशासन का, जिससे वहां का जो लोकल है वह भी खुश नहीं है बहुत मायने में। अगर आप सर्वे करवा लीजिए तो लोग दुखी हैं, लोग नाराज हैं, लोग परेशान हैं, लोग अफरा तफरी में उनकी जिंदगी बीत रही है। तो सर ये जो चीजें चल रही हैं, इससे जो हमारे मॉन्यूमेंट हैं, जो हमारे हेरिटेज हैं, तो उसको ये तो सिर्फ मतलब सिविक सेंस की बात नहीं है, ये उससे ऊपर की बात है, ऊपर की चीज है। तो उसमें एक तबका ऐसा भी है जो बहुत खुश भी है इन सारी चीजों से, संतुष्ट है कि हाँ कुछ हो रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि नहीं कुछ होने से अच्छा है कि पत्थर उखाड़ के टाइल ही लग गया, या जंगल ही कट गया, सड़क ही डबल लेन से 4 लेन बन गई। तो सर सवाल तो ये भी है कि ये सारी चीजें आखिर में किस लिए की जा रही हैं, क्यों की जा रही हैं, इनके पीछे की जो पॉलिसीज है उस पर सवाल क्यों नहीं खड़ा हो रहा है। इतने बड़े बड़े चिंतक हैं, इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट हैं, सेक्रेटरिएट में तमाम लोग हैं, लेकिन ये सारी चीजें लगातार चल रही हैं, जिससे सिर्फ नुकसान हो रहा है, फायदा कुछ नहीं हो रहा है, पर्यावरण को भी हो रहा है, हेरिटेज को भी हो रहा है। तो सर ये बातें भी मैं इन सारी बातों के साथ जोड़ना चाहती हूँ, जिन पर बात नहीं हो रही है ज्यादातर। दीपिका जी सर हम इसमें हम कुछ कहना चाहेंगे, इसमें दीपिका जी की बातों पे ऐड करना चाहेंगे। निशा जी आपकी बात से पहले मैं बताऊं कि अभी किसी ने मैसेज डाला इसी पे कि ताजमहल में 40,000 लोगों को जो है पर डे रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि इससे ज्यादा लोग नहीं आएंगे। तो एक इंफॉर्मेशन किसी ने नेट पे भी डाली, यहीं सामने किसी प्रेजेंटर ने जो
यहाँ आप में से ही मौजूद है, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूं। जी बताइए। ओके सर, ओके सर। सर हम दीपशिखा जी की बातों से एग्री हैं, बट लेकिन हम कुछ पॉइंट ऐड करना चाहेंगे इसमें कि जैसे एट ए प्रेजेंट टाइम में आप जैसा जानते हैं पहले के लोग इतना घूमने नहीं जाते थे और वो ज़्यादातर घरों में अपने पर्सनल कामों में बिजी होते थे, लेकिन आज का जो समय एट ए प्रेजेंट टाइम लोग कहीं भी फ्री होते तो सबसे पहले घूमने का प्लान बनाते हैं। तो जब वो चीज़ें हमें सुंदर नहीं दिखेंगी या एट ए प्रेजेंट टाइम में उसको आज के समय के अनुसार नहीं बनाया जाएगा तो लोग वैसे कैसे आएंगे वहाँ पे देखने इन चीज़ों को। फिर वैसी जगहों पे जाने की जरूरत नहीं है ना मैम, फिर आप मॉल में घूमिए, जो नए नए स्ट्रक्चर बन रहे हैं वहां घूमिए, क्योंकि पुरानी चीजों को नुकसान पहुंचा करके अपना आनंद लेना ये कौन सी टेंडेंसी है? ये पुरानी चीजें तो होनी चाहिए, वो हमारा कल्चर है। वो होगा तभी तो पुरानी हमारी चीजों वाली को जनरेशन जानेगी कि क्या चीजें सर थी। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा टूर पे जा रही है तो उसके लिए फैसिलिटी हम नहीं प्रोवाइड करेंगे तो टूर पे कैसे जाएंगे लोग। देखिए मामला वही है, मैं वही टूरिज्म एक अलग चीज है और हेरिटेज को बाकी चीजों को सुरक्षित रखना एक अलग चीज है। अगर मेरी श्रद्धा होगी तो जहाँ सिंगल लेन सड़क है मैं वहां भी जाऊंगी दर्शन करने के लिए। I would like to add something. लेकिन जंगलों को काट करके उस तरह स्ट्रक्चर को खराब करके वहां पर जाने का क्या मतलब है, क्या मायने है, मैं ये कहना चाहती हूँ। माफ करिएगा दीपशिखा जी, मैं रोकूंगा आप लोगों को क्योंकि ये अगर टॉप डिस्कशन में डेवलप हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। If you want to ask any question from me, I'm here. जी सत्येंद्र जी बताइए। सर मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एक करके बात करिए। सत्येंद्र जी पूछ रहे हैं तो मैं उनसे बात करूँ। अमित जी एक मिनट होल्ड करिएगा, मैं सत्येंद्र जी की बात सुन लूं फिर आपको जवाब देता हूँ। जी सत्येंद्र जी। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा हटके था। जैसे सपोज आपस में हम लोग बात कर रहे हैं कि मतलब गवर्नमेंट या वहाँ के जो सिविक लोग हैं या जो वहाँ के पीपुल्स हैं या वहाँ का एनवायरनमेंट है, जो भी हमारे पास एक्ट्स हैं उसके थ्रू जो भी किया जा रहा है, आपके थ्रू जो किया जा रहा है, वो सब चीज़ अच्छी बात है, सराहनीय है। कुछ हम लोग की भी गलतियां हैं जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण से ताजमहल खराब हो रहा है। मैं एक चीज़ सर पूछना चाह रहा था आपके जरिए से कि क्या ऐसा कोई केमिकल्स इजाद हुआ है क्या कि सरकारें जो अलग काम कर रही हो तो ठीक है, क्या ऐसा कोई केमिकल है जिसके कारण ताजमहल में जो पीलापन है, जो एसिड का है, जिससे को हम रिमूव कर सकते हैं, ऐसा कुछ इजाद हुआ है क्या? एक जानकारी थी, क्यूरियोसिटी थी मेरे मन में, बता पाएंगे सर? नहीं, बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई भी हुई हैं और बहुत सारे नई टेक्निक्स भी आई हैं जिनके थ्रू चेंजेस और रेस्टोरेशन का काम भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स ही हैं, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हुई हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। बट कहीं ना कहीं हमारा जो नजरिया है चीजों को देखने का, उस नजरिए को हमको बदलना पड़ेगा। हमारी जो सोच है उसको हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। ओके सर, ओके सर। कि कहीं ना कहीं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमको जब तक हम आप अपने जिस भी शहर में रहते होंगे, हर एक शहर में आपके आसपास बहुत सारी धरोहर मौजूद होगी। बट क्या हम उसके सामने से निकलते हुए कभी भी हमारे दिमाग में एक बार भी ख्याल आता है कि ये हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज है, इसको हम इसके बारे में हम पढ़ें, इसके बारे में हम समझें और हम दूसरों को भी बताएं जो इन चीजों जो इसको यूज कर रहे हैं? नहीं आता। तो जब एज एन एजुकेटर हमारे जहन में ये ख्याल नहीं आता तो जो एक नॉर्मल इंसान है जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपने खाने कमाने में लगा हुआ है, हाउ कैन ही थिंक अबाउट दोज इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स? तो कहीं ना कहीं शुरुआत हमको करनी होगी एज अ एजुकेटर, एज अ मेंटर, एज अ टीचर, कि हम अपने इलाके की जो धरोहर है, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, उनके बारे में हम सोचें, उनके बारे में हम पढ़ें, उनके बारे में हम समझें और उसके बाद हम उन इलाकों में जो नुक्कड़ नाटक करें, हम लोगों से बातचीत करें, एक गैदरिंग करें। कुछ नहीं, हम 10 लोगों को ले जाके वहां खड़े होकर उस मॉन्यूमेंट को डिस्क्राइब करें, उसकी खूबसूरती के बारे में, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में लोगों को बताएं। तो उससे लोगों में जागरूकता पैदा होगी और जब जागरूकता पैदा होगी तो सिविक सेंस पैदा होगा, उनके अंदर सलाहियत पैदा होगी कि वो उन चीजों को खुद खराब होने से रोकेंगे। अदरवाइज जब हमको खुद ही नहीं पता तो हम दूसरे को क्या बताएं? रेस्टोरेशन के बारे में पूछा सर, रेस्टोरेशन के बारे में।
कैसे रिस्टोर कर सकते हैं? वाजिब है जो चीज आप बता रहे हैं सर, वेल वो मैं एजुकेटेड लोग भी घूमने के लिए पूरा दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा वीकेंड पे खाली हो जाता है। जी भावना सर जी, सही कह रही हैं आप। मेरा जो क्वेश्चन था सर, मैं ये जानने का थोड़ा सा क्यूरियोसिटी थी कि जो भी हो रहा है वो तो हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, एज एजुकेटर्स भी काम कर रहे हैं हम लोग, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कोई साइंटिफिक कोई डिस्कवरी हो या ऐसा कुछ एवोल्यूशन है क्या जिसके कारण हम रिस्टोर कर सके केमिकली या ऐसा कर सके? जी बहुत एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं रेस्टोरेशन की, एंड द स्ट्रक्चर्स आर बीइंग रेस्टोर्ड। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, बहुत काम हो रहा है, बट मैं फिर आपसे कहूंगा कि रेस्टोरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट सोशल कंजर्वेशन है, क्योंकि मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जामा मस्जिद को रेस्टोर किया आज से तकरीबन 8 साल पहले, और रेस्टोर करके मैंने यूनिवर्सिटी को, एडमिनिस्ट्रेशन को वो बिल्डिंग दे दी। बट अब उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, जो लोग उस बिल्डिंग को यूज कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उस बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करें। अदरवाइज क्या होगा, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो बिल्डिंग फिर उसी पोजीशन पे पहुंच जाएगी जहां पे वो थी। तो कहीं ना कहीं इस बात को हमें समझना होगा। सत्येंद्र जी, थैंक यू। Thank you very much, Thank you, sir. Thank you so Really, much. your Sir, discussion ये is much मेरा- nice and fruitful मेरा for our Thank you country. very much, sir. I would like to say, sir, कि सर आपने जो बताया हमको, सर यू आर द एक्सपर्ट एंड आर्किटेक्ट इन दिस एरा। तो सर मेरा ये मानना है कि जैसा भी आपने कहा कि माय वॉइस इज रिपीटिंग, ओके सर, तो मेरा ये कहना है सर कि जैसा भी आपने बताया कि आपने प्लान कर बनाकर ये दे दिया, और इसके बाद का जो पोस्ट वर्क है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका रख रखाव करे। लेकिन सर मेरा ये भी मानना है कि जो टाइम इसको ऑब्जर्व कर आप द्वारा इस पर जो कमियां हैं उसके बारे में प्रॉपर सजेशन दिया जाए जिससे इनका इम्प्रूवमेंट हो सके। आपने ताजमहल को एक केस स्टडीज के रूप में उठाया, सभी चीजें बताया, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ इन सभी एनालिसिस के थ्रू कि अभी जैसे मैडम उनको भी हम लोगों ने सुना, तो परिवर्तन ही संसार का नियम है और गवर्नमेंट इस दिशा में अच्छी चीजें कर रही है, परिवर्तन कर रही है, लेकिन हमको वर्क वहाँ करना है जहाँ कमियां हैं। जैसे ताजमहल थोड़ा इग्नोरेंस का, अनदेखेपन का शिकार हुआ है, जब तक मैं भी महसूस करता हूँ, बिकॉज आई लिव नियर द आगरा एंड तो इसलिए कहीं हमको लगता है कि जो इसमें कमियां हैं उसको दूर किए जाने चाहिए और आप द्वारा जो एक्सपर्ट का सजेशन आना चाहिए। सर वास्तव में आपने जैसा बताया कि जागरूकता अभियान के थ्रू हम इस पर अपनी बात उठाएंगे और गवर्नमेंट का भी ध्यान आकर्षित करेंगे, खींचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संतोष जी। मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी। मैं अमित कुमार मिश्रा जी। सर मैं प्रयागराज से हूँ और यहाँ गंगा के किनारे अकबर का किला है और अकबर का किला तो डिफेंस के द्वारा जो है वो एक्वायर कर लिया गया और वहाँ उनकी एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी गंगा के किनारे बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें हैं जिनको रिस्टोरेशन की आवश्यकता है। इसमें अहिल्याबाई होलकर का एक जो है बिल्डिंग है और राजा टोडरमल का एक किला है जिसमें उनके वंशज आज भी रहते हैं और उस पर पहले किराएदारों का कब्जा था और वो अब पूरी तरह से मुक्त हो गया है, लेकिन उनकी माली हालत ऐसी नहीं है कि वो इसको रिस्टोर कर सके, लेकिन वो एक बेहतरीन एक जो है बिल्डिंग है और उसको रिस्टोरेशन के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सी ऐसी बिल्डिंगें हैं वहाँ पर ऐसे पड़ी हुई। आपको अमित जी एसआई अपने सर्किल के जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उससे कांटेक्ट करना होगा और उनके जो सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट है उनको इनवाइट करना होगा और बुला के उनको दिखानी होगी ये केस। उन्होंने संपर्क सर किया था तो उस संपर्क में ये रहा कि अगर वो उसको हैंड ओवर कर देंगे उनको रिस्टोरेशन के लिए तो वो कहाँ जाएंगे, जो उनके जो रहने वाले हैं उनके उसका कोई हल नहीं निकल पाया सर। जी वो एक इशू है क्योंकि अनलेस एंड अनटिल उसको वैकेट नहीं कराया गया तो फिर वो लोग नहीं करेंगे, क्योंकि एसआई के अपने रूल्स हैं कि अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपने प्रोटेक्शन में उस बिल्डिंग को लेती है तो फिर उसके बाद उस बिल्डिंग को में कोई भी चीज आप नहीं कर सकते। तो उनका नहीं तो उनका अगर कोई रिहेबिलिटेशन प्लान भी है जो उस बिल्डिंग के वास्तविक मालिकाना रखते हैं, उसका कोई ऐसा प्लान है?
उसके लिए फिर आपको कल्चरल मिनिस्ट्री से बात करनी पड़ेगी कि अगर रेस्टोरेशन का काम उसमें, बिकॉज उनके पास फंड होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के पास, तो अगर वहां से हेल्प मिल गई तो वो काम हो सकता है। उसमें दोनों है, स्टेट कल्चरल डिपार्टमेंट भी होता है और सेंटर का भी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, तो वहां से आप कोऑर्डिनेट करके देखिए, शायद आपको कुछ रास्ता निकल आए। मिलन जी आप कुछ पूछ रहे थे? Good morning, sir. Hope you are doing well. Actually, your lecture reminds me of your last lecture in the FIP in the last year, and I have a question, sir, to you. That my question is: are we not molesting the value of our heritage in the name of conservation or preservation or modification and restoration? That's my question, sir. Actually, there is a very fine difference among all these little things, like conservation is different from restoration, restoration is different from preservation, but actual conservation is not happening in these buildings because they are not using the similar material, style and construction system. So you have to understand that which form of restoring the building is applying in these heritage monuments, because somewhere people are doing modification in the name of restoration. So you have to understand that the original conservation work is happening in those buildings or not. Thank you. No, sir. Actually, the example you have just given regarding the maintenance of Taj Mahal, and you have found that there was that material, that very material which they were using during the maintenance. So that if that is taken for granted, so what will be your opinion? In my opinion, Milanji, the restoration should be done with the best quality material, so that it can last for at least more than 100 years. Because अगर वो material ही हम खराब क्वालिटी का लगाएंगे तो जो हमारा ओरिजिनल मटेरियल है उससे भी जल्दी उसका डिटोरिएशन हो जाएगा. So we have to use the best material in that restoration work. Thank you. Thank you very much, sir. जी रूपन जी बताएं. Sir, first of all, I would like to thank you, sir, for your innovative and informative speech here. 2014 में मैं पहला बार एमयू गया था ऑफलाइन में रिफ्रेशर करने के लिए. In that year, I visited Taj Mahal, sir, and you have mentioned so many significance, and you have mentioned a very significant point, sir, regarding 19th century, the scenery of Taj Mahal. There was the dense gardens, sir, which are now losing gradually. And sir, a restriction, you have mentioned there that restrictions are increasing gradually. Is this restriction are being positive or negative, sir, in a sense? And I really very impressed to your speech, sir. Rupan ji, these restrictions are मैं क्या कहूँ, because the problem is that people don't understand the significance and importance of the building. If they are well educated about those buildings, then we don't require the restrictions, because they will not damage the building at that point of time. So first of all, we have to educate them, and then we have to remove the restrictions. Yes, sir. Thank you all for nice discussions and patient listening. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank Nice you so much. meeting Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you, you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
डाल के पटरी किनारे प्रभु 24 घंटे आदमी जाता है। एक बदमाश अगर सिलेंडर रख दे, पत्थर रख दे तो हमसे हर घर शौचालय से सब गड़बड़ है। तो बहुत विचित्र हाल आपका, लेकिन बहुत सही है। सही है ना? आप टिफिन दे दो, भाई साहब दे दीजिए। बैंक मैनेजर हमार बैंक अब एक नई स्कीम निकाली, पैसा डबल करे। ये झींगा वाला बैंक कौन है? ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। बाबूजी अब कुछ महीना पहले ना बैंक खुला है, और कहा है ना कि सब गाँव वाले का खेत के मामले में पैसा, तो हमारा बैंक यह सोच रही थी कि वह पैसा का 2 महीना के अंदर डबल कर देगा। अच्छा दादू, मैं सोचे हुए कि ये सयान आदमी आए, ये कुछ न जाना छोड़ी, कब 2 महीना में डबल पैसा हुआ है, सुने हैं तो लगता है। सर कुछ पीयर असेसमेंट में कल क्या होगा? ऐसा दादू, तोर बैंक चाहे नवा हो चाहे पुरान हो, हमार जूता है नए, हम उन्हीं का पहन के खेत में काम करत हैं और अच्छा बढ़िया फूले हैं, तो ऐसा तो सटाई करब कि फिर तो ही सब नवा नवा दिखाई, डबल डबल